आज यहाँ पे शरगोल मामनी फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया जा रहा है। खत से स्टार बना देख सकते हैं सारे यूटेंसिल्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। खत से फोकस फूड्स Now, with the permission of you, yes, we are going to start the cultural program talking for the you know where Karamba is star book and you know where Khatse B team को cultural group से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो लोग स्टेज पर आए और अपना बोल
by Ranthambore Group. So Ranthambore Group is requested to present the same. Thank you. Walaikum salam. Das napas isteri geran dikalle bana amma ameliyo manazir paya. Çar kudiya ya. Yeres davesi namzes verek hazır vermişim. Kaç ama kaluş ver kaçur. Yani ya. Bugafi kokoli dam sumstu sesdam se kureyon setti baren nukiyati khedmatla tonne dam jikajik zerbalar yakse. Snapetuspeno kapola zanigral met pakoren dukse nimosham toli man bukorena mindusumi kalpas kameta. Zamani zanifana jinife koltanife yambasife naftanife laskori ranthagaskori thaksena pheu thukpa police jose mishis kamne gamepa Namata ko sizan kun chirajap kun kole zasti ka mathakpa chani zanti ka byapwe shkachi mathona zanikala mabame Dibal biskunizan chonna maza megin leskan se na tropelu diare jumping iman hospital ambrasa tange Sisme tira shani braspuna de pekose diana sus na khere phukme jage ka balanga gambata Zamani bali kunche kaske rastot se duchas nanguna kalpana babun yopi de gostan kunika lan mata bene shasna shalun sase komis ground tunana khadra sambe Zaman ke annotation thik na thama met kabone actually utul banana khani pen Jabna boguni kone yo akshare sut sharare sut sepuli sut hindari sut pili Ula sikir text kone na lampu zabe Zachi pechi kone na yopi de bunchachi buthai chibomo inkure na gasta ache Snapetuspanu kapola odigral met batuken bambana thangshin kunika kunti pila odigralun bardo thongen thabla kupens butpatangen mikchu saren odrifingeta Izamatianu balak tikta thama met satahet karpo balak marpo balak fulpo balak serpo balak labbe balak tulbi balak khorbi balak taksena chanpuna imao norcha sabe Dikathamız yet puskele khosena hitena balar marpoda se tuksena de bijli pan la lorsa mathapa kutu bazgas to khonyes kusputa be Zamana lukubat bisari piatem burjose taksena bil jaksena champion de fulla ki ocean sosena sui Zercha mayoma marko dianam skyaske dugeta Zamantanu penetik na thama sose de zamantanu pene ma se tene ta se hagis khosena halbal bizla kum jagla boras kan se phamet jagla boras kan se phamet khosena de khose phamet Thank you so much May I now invite the Honorable Executive Councillor for Health, Janab Mohammad Ali Chandan Sahab, to come up on the dais to present your views. Honorable Executive Councillor for Health, Janab Mohammad Ali Chandan Sahab. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. आज के हमारे मुख्य अतिथि लद्दाख केंद्र प्रशासित हमारे जो यूटी अभी लद्दाख के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधा कृष्ण माथुर जी और
our Honorable Chief Executive Councillor, LHDC Kargil, Kacho Firoz Saab, Honorable Executive Councillor Mubarak Shah Naqvi Saab, Worthy Deputy Commissioner Bashir Ram Chaudhary Saab, SSP Saab, Manar Saab, Director Saab, और जितने भी यहाँ पे हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट यहाँ पे आए हैं, मुलबेग की क्वीन अनिशेमा और हमारे यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, शरगोली विमान संगमा, अतिथि अच्छे नुमो, कका फोन संगमा, अस्सलाम वालेकुम जुले। सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारे जो मुख्य अतिथि हैं और हमारे जितने भी यहाँ पे गेस्ट आए हैं, हमारे दिल की मीत गहराइयों से आप सबका यहाँ पे वेलकम करता हूँ। मैं आज कह सकता हूँ कि एट दिस मोमेंट आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, क्योंकि मेरा एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूंसी शरगोल कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मतलब इस लेवल के हमारे यहाँ पे गेस्ट आएंगे और इस लेवल का प्रोग्राम होगा। जब से मैं काउंसलर बना हूँ, पिछले 3 साल से यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हमने ये ममनी का प्रोग्राम किया है और पिछले साल भी हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं, इन्होंने इच्छा जाहिर की थी यहाँ पे आएंगे, लेकिन कुछ मौसम के ख़राब होने के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए थे। और उनका जब पहली बार वो लद्दाख आए थे, हम रिसेप्शन के लिए गए थे, तो यहाँ पे जब वो पहली बार आए थे उन्होंने एक हमसे वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा। तो आज वो शान है हमारे लिए, वो वापस आए हैं। तो इसके लिए हम आपको आपको शुक्रिया अदा करते हैं। सर ममनी जो फेस्टिवल है सर, एथनिक फूड फेस्टिवल यहाँ मना रहे हैं हम सर, एक ये हमारे यहाँ पे जो एक नेचर है लोगों का शेयरिंग, जो हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो बड़े कहते हैं कि मतलब कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कि सब अपने घर में, किसी घर में जो नहीं होता है वो जो होता है वो बना के लाते हैं हर एक के घर में। तो एक जगह लेके जाते हैं, वहाँ पे मतलब जो आपको अगर दूसरे मतलब बांध के खाते हैं, एक सर ये शेयरिंग प्रमोट करते हैं। और हमारे इसमें और एक मानना है कि आज जो हम ये गाना जो ये यहाँ पे जितने भी हमारे खाना वगैरह हैं, वो हमारे जो डिसीज यहाँ पे इंडिविजुअल जो हमारे पूर्वज हैं उनको यहाँ पे मतलब चढ़ाते हैं सर। बाकी आज यहाँ पे आप आए हो तो मतलब मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि जब से हमारा जो लद्दाख जो अभी यूटी बना है, तब से मैं मानता हूँ कि एक जो डेवलपमेंट की जो एक रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो चुकी है। अर्लियर मैं नहीं ये सोच सकता था कि मतलब कोई स्टेट का जो है इतना बड़ा हमारे यहाँ पे कोई ऐसा मतलब हस्ती यहाँ पे हमारे सामने हमारे बीच में बैठेंगे, लेकिन मैं खुश हूँ आफ्टर बिकमिंग यूटी। पहले मेरे को इतना नहीं था कि डेवलपमेंट की रफ्तार इस तरीके से आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, हमारे एमपी साहब सबको शुक्रिया अदा करते हैं कि हम यहाँ पे यूटी बने हैं। और उसके बाद अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे एज ए काउंसलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी आया हूँ, तो मैं आप सबके सामने ये रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि जब से ये यूटी बना है, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे गवर्नर साहब लीड कर रहे हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी कासम पिल्ले हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं, डीकॉम साहब आए हैं, गवर्नर साहब आए हैं, और हमारे जो काउंसिल है हमें एक ट्रिमेंडस सपोर्ट मैं कहूँगा हमारे शरगोल कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला है। इसमें से अगर मैं कुछ आपके सामने चीज़ें रखना चाहूँ, जैसे हमारा स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज हमारे उस आफ्टर बिकमिंग यूटी हमें मिला था, जब हमने पूरा उसमें देखा, हम अगर इरिगेशन बाकी सर डेवलपमेंट के जो काम है वो तो हो रहे हैं सर, लेकिन अभी भी कुछ हमें लगता है कि कहीं मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें सर जो आपके सामने रखने के लायक हैं सर, हमने एक मेमोरेंडम के शेप में सर आपके सामने रखा है सर। हम ये अभी सर अल्टरनेटिव सर सिविल एयरपोर्ट सर उसके सरुका तंकड़ सर एयरपोर्ट की सर्वर हम कराना चाहते हैं सर। हमारे ये नहीं है कि सर जो कारगिल का जो मेन एयरपोर्ट है यहाँ बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे खित्ते कारगिल में जो लद्दाख के जो हमारे कारगिल जो एरिया है इसमें एक एयरपोर्ट हो, जो कि सर अभी हमें सुनने में आ रहा है कि जो हमारा जो सरुका था वो फिजिबल हमें जो लोगों से सुनने में आया, तो हम चाहते हैं कि सर एक उसका सर्वे कराया जाए, या अगर यहाँ पे नहीं हो सकता कारगिल किसी भी एरिया में जो है एयरपोर्ट हो सर। हमारे लोगों का एक डिमांड ये है कि जो सर शरगोल तहसील है सर उसको सब डिवीजन का दर्जा मिले सर, क्योंकि अभी एक छोटे से सर चिट्ठी के लिए सर हमें यहाँ से 45 किलोमीटर आगे सर चिकटन जाना पड़ता है सर, यहाँ से भी 45 किलोमीटर है, यहाँ से भी। और अभी सर रिसेंट अभी लास्ट जब से हम बने तब SDM साहब को हमने रिक्वेस्ट करके सर यहाँ पे 2 दिन के लिए आते हैं, लेकिन उसके बगैर अगर कोई काम हो तो सर हमें यहाँ से बिल्कुल शक्कर चिकटन जाना पड़ता है सर, एक सिग्नेचर के लिए भी सर। और हमारे लोगों की एक डिमांड है सर यहाँ पे वुमेन की एक डिग्री कॉलेज हो, क्योंकि सर हमारे इस पूरे सर एरिया में कोई सर डिग्री कॉलेज नहीं है, और सर इसके लिए सर हम वुमेन डिग्री कॉलेज के सर हम एक डिमांड रखते हैं सर। और एक सर हमारा जो एक प्रपोजल ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी आपके पास है, अपग्रेडेशन ऑफ सर PHC शरगोल टू CHC सर। हमारे कारगिल पूरे हिस्से में सर 2 PHC है, एक सर हमारे पनीकर में, दूसरा सर यहाँ पे सर
सर हमने मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हर एक चीज़ का सर बराबर प्रपोजल भेजा है। और अब अगर हम देखें सर यहाँ इस हाईवे पे सर कोई मतलब CHC नहीं है सर, चिकन वाला भी अंदर जाके आता है। तो हम सर समझते हैं कि सर एक टूरिज्म सर एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो सर हमारे उसके लिए सर अपग्रेडेशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें स्टाफिंग वगैरह सब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सर हमारे एक कम्युनिटी हॉल तहसील लेवल की सर, ऐसे सर हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ा है, लेकिन अभी हमारी जो कम्युनिटी हॉल है वो छोटे छोटे हैं। यहाँ पे बच्चों को मेरे को लगता है वो कैपेबिलिटी वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल जा सकते हैं। तो एक इंडोर आइस हॉकी रिंग की सर हम डिमांड करते हैं सर। उसी के साथ जो इंडोर आइस हॉकी की जो इक्विपमेंट होती है सर, हमने देखा सर मतलब 2 से 2.5 लाख के आसपास हमारे इक्विपमेंट का होता है। तो सर हमारे बच्चों में सर इतनी वो है, काउंसिल की तरफ से भी इतना नहीं कर पा रहे, तो आप कॉन्स्टिट्यूंसी के उस पर सर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको सर आइस हॉकी इक्विपमेंट दिया जाए, ताकि सर वो मतलब फर्दर जो आगे अपने इसको गेम को कंटिन्यू कर सके। सर एक मिनी सेक्रेटरी सरगोल सर हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट सर एक छोटे से इलाके में अलग अलग जगहों पे डिपार्टमेंट्स हैं। सर एक मिनी सेक्रेटरी अगर यहाँ पे होगा तो हमें लगता है कि सारे ऑफिस जब एक जगह पे हो तो सर हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा सहूलियत होगा, हमारे सारे अफसर यहाँ पे हो सकते हैं। और एक सर आखिर में हमारे सैंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट शरगोल सर, यहाँ पे जितने भी यूथ है सर उनके लिए मतलब कोई भी आप ऐसा कोई इंस्टीट्यूट वगैरह है नहीं। आफ्टर 10th सर 12th ये सर बच्चे सर अभी मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ सर ग्रेफ में सर ये जो हमारे लेबर के सर काम ज्वाइन कर रहे हैं सर। इफ अगर इंक्लूडिंग हमारे 10th 12th के बाद भी पास आउट अगर हो के मतलब अगर वो आगे पढ़ना नहीं चाहते तो इस इंस्टीट्यूट के जरिए उनको कोई ट्रेनिंग लेके कहीं अपना काम कर सकते हैं। सर ये हमारे एक मेमोरेंडम सर हमने आपके सामने रखा है, जिसके ऊपर हमें सर पूरा विश्वास है कि मतलब इनके ऊपर कुछ ना कुछ आप एक्शन लेंगे। बाकी आप सब जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हैं, आप सब जितने भी ऑडियंसेस यहाँ पे आए हैं, जितने हमारे चीफ गेस्ट यहाँ पे आए शरगोल कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, आप सबको शुक्रिया दिल की गहराइयों से। और मैं जैसे कह रहा हूँ कि हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट राइट नाउ, तो जितने भी ग्रुप्स है यहाँ पे, चाहे वो फूड का हो कल्चर का हो, मैं सबको 1500 रुपीज़ अपनी तरफ से अनाउंस करता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सब जितने भी यहाँ पे आए आप सबको थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच। So thank you very much, sir, for sharing your valuable views. According to Amit, there was a tradition of a small mamani called Maksumi Mamani that used to celebrate at the dawn by lighting a fire in the courtyard of every household. But now this tradition is not in vogue. So now I would like to request the cultural troupe Mulbe to please come up on the dais and present your Jabro. Cultural troupe Mulbek is presenting a Jabro, a form of song. Presented by cultural troupe Waka. So the cultural troupe Waka is requested to present Shonlu.
Laju Opulenjo, Nuta Gro Chorda, la Selva Jigmima, la Zagra Chazanjo, Charbol, Kachato. I would like to request the Honorable Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Shri Feroz Ahmad Khan, to kindly come up on the dais to share your valuable thoughts. Honorable Chief Executive Councillor. Honorable Lieutenant Governor Ladakh, Janab R.K. Mathur ji, Honorable Executive Councillor Ali Chandan Saab, Mubarak Shah Saab, Deputy Commissioner Basirul Haq Chaudhary Saab, SSP Saab, Inayat Ali Saab, हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब, हमारे डायरेक्टर्स हजरात, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे यहाँ पे शरगोल ब्लॉक के मुख्तलिफ गाँव से इस मामानी फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए तशरीफ़ लाए हुए तमाम ख़वातीन और हज़रात और हमारे लेह से भी कुछ आर्टिस्ट यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से सलाम वजुले। सबसे पहले मैं करगिल हिल काउंसिल की तरफ से हमारे हरदिल अजीज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब माथुर साहब को खुशामदीद पेश करता हूँ कि वो अपने गुनागूं मसरूफियात के बावजूद इतनी सर्दी में आज यहाँ पे हम सबके बीच में हमारे तमाम आर्टिस्ट के हौसला अफजाई करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही जितने भी ऑर्गेनाइजर्स, जिसमें हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस को 2 दफ़ा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया और आज एक ही दिन वो यही प्रोग्राम हमारे चिकटन में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। मामानी फेस्टिवल, जैसे अभी यहाँ पे अली साहब ने भी फरमाया कि मामानी जो फेस्टिवल है ये सदियों से हमारा एक रवायती एक फेस्टिवल है और इसकी खूबी ये है कि हर लोग, हर मजहब के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। पुराने ज़माने में कहा जाता है मामानी के बाद, यानी मामानी हमेशा जो है 21 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। कल अगर हम देखेंगे 21 जनवरी को
तो करगिल के हर मोहल्ले में, हर गांव में ये सेलिब्रेट किया जाता है अपने तौर तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में लोगों के पास उतने वसाइल नहीं थे खाने पीने का। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रिप्ट यहाँ पे पेश किया हमारे रंठक ग्रुप के हमारे काचू साहब ने, उसमें उन्होंने बखूबी बता दिया कि पिछले ज़माने में और आज के ज़माने में क्या डिफरेंस है। पुराने ज़माने में हमारे पास जो कुछ था यही हमारा सत्तू था। इसी सत्तू के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था, ना हमारे पास दाल था, ना चावल था, ना सब्जी था। और इसी सत्तू के डिफरेंट वैरायटीज को वो लोग पेश करते थे। हर घर में जो भी मिलता था, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, अमीर नहीं, जो उनके घर में अवेलेबल होता था उसी का पकवान मुख्तलिफ डिशेस बना के वो लोग अपने अपने मोहल्ले में जमा करते थे। एक जगह सब जमा होते थे और वहीं पे खाते थे। जो बचते थे उसको आपस में सब तकसीम करके लेते थे। और कहते हैं कि ये जो हमारा मेन जो सर्दी होता है, हर विंटर जो शिद्दत की सर्दी है, उसमें कल से कमी आना शुरू होगा। ये एक कंसेप्ट है ममनी का। तो माशाल्लाह अभी तो नए दौर के साथ अब ये एक फूड फेस्टिवल बनते जा रहा है। अब ये एक एथनिक फूड फेस्टिवल बनते जा रहा है। और हम सब की कोशिश ये है कि हम इसको अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म के साथ जोड़ें। इसको एक टूरिज्म एक अट्रैक्शन हम बनाएं, ताकि हमारा जो लॉन्ग विंटर होता है उसमें ये एक हमारा मेन एक्टिविटी हो, एक मेन सेलिब्रेशन हो और साथ साथ में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो। तो मैं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर एलजी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजिन समफेल साहब, टूरिज्म के डायरेक्टर बाकियों का बहुत मशहूर हूँ कि जो हमारे विंटर कॉन्क्लेव जो है उसमें इसको जोड़ दिया है। अब ये बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह हम उम्मीद है अगले साल से अलग अलग करगिल के अलग अलग जगहों में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ताकि इसको बढ़ावा मिले और इसको एक टूरिज्म के साथ हम जो है इसको जोड़ दें। तो मैं इस मौके पर ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं एलजी साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अदरवाइज सर्दियों में हर कोई जो है कमरों में बंद होता था। हमारे यहाँ पे मूवमेंट कम होता था और सबके जहन में ये होता था कि नवंबर के बाद हमें कुछ नहीं करना है, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो आम लोगों के लोग हो। हमारे यहाँ पर एक तरीके का जो है बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल जैसा होता था। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से हम ये देख रहे हैं कि विंटर में यहाँ पे कुछ न कुछ एक्टिविटी हमारे यहाँ हो रहा है। और सर अगर आप विंटर गेम्स की बात करें तो स्कीइंग, आइस स्कीइंग जो है इतना पॉपुलर हो चुका है करगिल में कि आज फर्स्ट टाइम जो है करगिल में वुमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और खुशी की बात यह है कि आज आने वाले जो हमारा जो सीसी कप होने वाला है उसमें 28 टीमों ने रजिस्टर किया है, जिसमें 5 वुमेन टीम भी है। तो और उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो यूटी बनने के बाद जो फंडिंग में इजाफा हुआ उसका एक फायदा ये हुआ कि हम लोग जो है आज हर पंचायत लेवल पे हमारा एक आइस हॉकी रीग बनने जा रहा है। और हमारी ये कोशिश है आइंदा आने वाले सालों में कि हर एक ब्लॉक हेडक्वार्टर पे कम से कम 2 आइस हॉकी रिंग बने, जो एक टूर्नामेंट्स के लिए हो, दूसरा एक बच्चों के ट्रेनिंग के लिए। ये हमारा एक मकसद है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा विंटर गेम्स को जो है तवज्जो दें। और विंटर गेम्स में हम पहले ही कहते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जिसमें विंटर गेम्स आइस हॉकी हो, स्कीइंग हो, पोलो हो, आर्चरी हो, हमें उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि इन गेम्स की वजह से हमारे जो आने वाला जनरेशन है वो काफी आगे जा सकता है। अदरवाइज क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, अच्छी चीजें वो भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें इतना कंपटीशन है कि आज तक हमारे बच्चे इवन नेशनल तो क्या रणजी ट्रॉफी लेवल तक भी हम नहीं जा पाए। लेकिन आइस हॉकी में देखिए आप, हमारे जो यहाँ लद्दाख के जो बच्चे हैं वो नेशनल भी खेल रहे हैं। तो इन गेम्स में बहुत स्कोप है और हमें उम्मीद है कि एलजी साहब की लीडरशिप में हम इन गेम्स को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो है वो कामयाब होंगे। बाकी उसके अलावा सर, आपके आने के बाद जो आपने इंटरेस्ट लिया, हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का बड़ा मसला होता था। यानी 15 नवंबर को हम लोग ये समझते थे कि हमारा रोजिया बंद होता था, लेकिन इस साल 31 दिसंबर तक भी हमारे ट्रैफिक जो है मूवमेंट चलता रहा। और अगर आज 20 जनवरी को भी आप देखेंगे कि हमारा करगिल जांस्कर रोड आज भी खुला, यानी एक रिकॉर्ड है कि जनवरी के महीने में भी जांस्कर का रोड खुला है। कल हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब गए थे, 9:30 बजे वो यहाँ से निकले, शाम को 5 बजे वो पदुम पहुंच गए।
ये सारा जो है हमारी फंडिंग की वजह से है कि हम अच्छे मशीनरी परचेज कर सके, जिसकी वजह से हम जो है अपना रोड जो इंटरनल रोड से वो सारा खुला रख सके। तो विंटर में क्योंकि हमारा सब ये जहन में ये था कि हमारे यहाँ विंटर जो है बहुत कठिन होता है, कहीं मुश्किल होता है, ये जरूर होता है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में जिस तरह से फंडिंग हमें मिल रहा है यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंशाल्लाह ये सारे मुश्किलात जो है हमारा हल होगा। और इस साल इसी 1-1.5 साल में हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जिसमें हमारा जोजिला टनल और इरिगेशन ऑफ कुर्बथाम प्लेटो, ये दोनों हमारे एलजी साहब की सदारत में ये 2 चीज हमारे हुए हैं। और एक चीज हमारा रह जाता है सर, हमें उम्मीद है जब तक आप यहाँ हैं वो मसला भी हल होगा, वो है हमारा एयर कनेक्टिविटी, हमारा एयरपोर्ट और ऑपरेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट। अगर ये हमारा हल होता है तो करगिल वालों का 90% जो मुश्किल है वो हल हो जाएगा, लोगों की मुश्किलात हल हो जाएगी, यहाँ टूरिज्म बूस्ट होगा, लोगों का इकोनॉमी बढ़ेगा। लोगों की जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो नेचुरली बच्चों का एजुकेशन भी अच्छा होगा, हमारा उठना बैठना रहन सहन में भी चेंज आएगी। तो हमारी पूरे करगिल अवाम की तरफ से आपको यह पुरजोर गुजारिश है कि जो एयरपोर्ट का मसला है और एयर कनेक्टिविटी का मसला है, आप इसको किसी तरह से भी सर हल कीजिए। तो आखिर में मैं एक बार फिर इस मौके का फायदा उठाते हुए, जिस मुश्किलात से हम लोग इस साल लड़े हैं 2020 में कोविड-19 जो महामारी हुई, लेकिन अभी खुशाइन बात यह है कि हमारे मुल्क के वजीर आजम, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे मुल्क के साइंसदानों की कोशिशों के बावजूद अब हमारे पास वैक्सीन आ चुका है। और मुल्क के साथ साथ हमारे लद्दाख जो प्रिकॉशंस जो एहतियात हम बरत रहे हैं, मास्क लगाना, बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमने तब तक जारी रखना है जब तक हमारे पास कोई दूसरा वैक्सीन नहीं आता। तो मैं एक बार फिर आखिर में तमाम पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने इस सर्दी में यहाँ पे इतना खूबसूरत यहाँ पे स्टॉल लगाया, और हमें उम्मीद है कि हमारे एलजी साहब इनको देख के बहुत ही मुतासिर हुए, इनको देख के। एक तो डिशेस को देखा है इन्होंने, दूसरे हमारे यहाँ पे कैसे लोग पुराने लोग बर्तन पत्थरों के बर्तन में किस तरह खाना बनाते थे, वो सब चीजों का इन्होंने मुजाहरा यहाँ पे किया है। तो वो सारी चीजें यहाँ डिस्प्ले करने के लिए आप सबका मशहूर हो, सारे ऑर्गेनाइजर्स का भी मशहूर हो, और फाइनली मैं एलजी साहब का बहुत ही मशहूर और ममनून हो कि जिस तरीके से आप करगिल की ओवरऑल डेवलपमेंट में आप हिस्सा ले रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में करगिल जो है वो एक चेंज होगा, एक तब्दीली हम जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Executive Councillor LHDC Kargil for expressing your valuable views. Indeed, the history of Mamani in Ladakh is dated before the advent of Buddhism. When the people were the followers of Buddhism who worshipped deities, which in local language called Lalhu. As per the tradition, whatever dish items one prepares at his home had to bring out them at the place where people assemble in the name of their spirits. So in other words, Mamani is a festival of thanksgiving to our ancestors. Now I request the cultural troupe from Dras to present the Shinaso.
Cultural troupe de joueurs Pulenjo, qui est Thank you. Now an old folk song by cultural troupe Karamba will be presented. An old folk song.
occasion, Honorable Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh, Shri R.K. Mathur Sahib, to kindly come up on the dais to express your valuable views. Thank you very much, sir. Thank you. सलाम, जूले, नमस्कार. Honorable Chief Executive Councillor Shri Khan Sahab, Honorable Councillor Shri Ali Chandan Sahab, मुबारक जी, DC Sahab, SSP Sahab, Brigade Commander, other people present on the dais, all the participants, चाहे वो फूड स्टॉल्स हो, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो, बाकी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, सबको फिर से मेरा नमस्कार, जूली सलाम. सबसे पहले मैं एग्जीक्यूटिव काउंसलर श्री अली चंदन साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा. पिछले साल मैं नहीं आ सका, इसका मुझे बहुत दुख हुआ पिछले साल, और इस बार मैंने अली चंदन साहब को बोला था कि डेफिनेटली आऊँगा, वेदर खराब हो, वेदर ठीक हो, लेकिन यहाँ आना ज़रूरी है. एक बार वायदा किया था, पूरा नहीं हुआ, इस साल ज़रूर पूरा करना है. अली चंदन साहब को मुबारकबाद इसलिए कि उनकी लीडरशिप में बहुत से डेवलपमेंट काम शुरू हो गए हैं. उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक एक करके वो एड्रेस करते जा रहे हैं, नए सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं. और ऐसा मुझे लगता है लेह में बैठकर अक्सर कि कारगिल एक नए अवतार में, एक नई तेजी से आगे बढ़ रहा है. आपकी लीडरशिप और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़, उसको मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा, आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा. मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आ सका आज, और ये जो फेस्टिवल है इसको देख सका. मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि कोई जगह, चाहे लद्दाख हो, कोई भी हो, 6 महीने की इकोनॉमी में कोई स्टेट, कोई यूनियन टेरिटरी प्रॉस्परस नहीं हो सकती जब तक हम 12 महीने काम नहीं करेंगे. 12 महीने की हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था नहीं होगी, तब तक जो हमें एक ऑब्जेक्टिव है ज़िंदगी में, खुशी के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कुछ पैसा हाथ में आए, कुछ कल्चर प्रमोट हो, एजुकेशन मिले, हेल्थ मिले, ये सारी चीज़ें संभव नहीं हो सकती अगर मैं सिर्फ 6 महीने काम करूं और 6 महीने मैं गोवा में बैठा हूं, कि मैं जम्मू में बैठा हूं या घर में बैठा हूं. कोई इकोनॉमी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, बच्चों की पढ़ाई नहीं. दिस हैज टू चेंज. अगर लद्दाख को उन्नति करनी है, अगर प्रगति करनी है, वी हैव टू चेंज. एक एग्जाम्पल, आप आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में खड़े हैं, लेकिन पहले तो कोविड से बंद रहे और अब जाड़ों के कारण बंद हो गए. पूरी दुनिया में ऐसे टेम्परेचर्स ऐसा नहीं है कि नहीं है. कनाडा में भी ऐसे टेम्परेचर्स हैं, रशिया में भी ऐसे टेम्परेचर्स हैं, आइसलैंड में भी ऐसे टेम्परेचर्स हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता कि स्कूल बंद हो जाए, कि हेल्थ सेंटर बंद हो जाए, कि गवर्नमेंट बंद हो जाए, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाए. हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें भी उन देशों का एग्जाम्पल लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करें. 1 साल में नहीं होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना भी समय लगता है, लेकिन हमें, मेरा मानना है कि इस डायरेक्शन में जाना है कि हमारे बच्चे फुल टाइम पढ़ें, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फुल टाइम काम करे, हमारी इकोनॉमी 12 महीने इनकम जनरेट करे. मैं ये मानता हूँ कि ये लद्दाख के लिए बहुत ज़रूरी है. इसमें सभी के सहयोग चाहिए, आम जनता का, पॉलिटिकल लीडरशिप का, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप का, और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें संभव हो सके. जहाँ तक मामनी का प्रश्न है, पहली चीज़ तो इसका जो ओरिजिन है, एक कम्युनल हार्मोनी, दूसरा
कम्युनल हार्मोनी, रिलीजन वाइज फीलिंग विद इन द विलेज कि हम सब एक हैं, ये एक अपने आप में मैं मिसाल मानता हूँ। अगर आपकी हेरिटेज, आपकी सिविलाइजेशन उसको दिखाती है कि हर आदमी को इज्जत है, हर आदमी बराबर है, हर आदमी का मजहब कुछ भी हो फिर भी हमारी नज़र में एक जैसा है, सब मिलकर काम करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जो हम बार बार लद्दाख की सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ये एक जीता जागता नमूना है मामनी फेस्टिवल। इसीलिए इस फेस्टिवल में आके मुझे बहुत खुशी हुई। चंदन साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि इस पुरानी हजारों साल पुरानी प्रथा को मॉडर्न ज़माने से जोड़ देना, टूरिज्म से जोड़ देना, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसको चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब की मदद से, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ शरगोल में ही क्यों, जैसा आपने कहा कि पूरी जगह होता है, पूरे कारगिल में होता है, तो हमारी कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि इसको एक नेशनल लेवल कॉन्शसनेस में लाएं, नेशनल स्टेज पे लाएं, टूरिज्म से जोड़ें, ताकि हमारी जो ओल्ड कल्चर है वो तो प्रिजर्व रहे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक आमदनी का जरिया भी ये हो सके। और मुझे लगता है कि बहुत पॉसिबल है। यहाँ जो कुछ मैंने देखा उससे बहुत सारे मेरे दिमाग में नए आइडियाज़ जनरेट हुए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हिल काउंसिल के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन उन आइडियाज़ को आगे बढ़ाए, देखें कि इसको अगले सालों में मामनी फेस्टिवल कहाँ हम पहुँचा सकते हैं, किस तरह से हम अपनी सिविलाइजेशन और मॉडर्न युग को एक साथ जोड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर आप आए, आपने पार्टिसिपेट करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि इसी तरह से हमारी जो लीडरशिप है चंदन साहब की, खान साहब की, इनकी लीडरशिप में हम बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बहुत प्रगति करेंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। नमस्कार। Thank you very much, Chief Guest of the occasion, Honorable Lieutenant Governor of the Union Territory of Ladakh, Shri R.K. Mathur Sahab, for expressing your valuable views, sir. Now, this ceremony is about to conclude, as all human things are subject to decay, and when time and fate summon, monarchs must obey. But before concluding, I would like to request the worthy Director Tourism, Srimati Kunjas Ambo, to kindly come up to the dais to present vote of thanks. Shri Kunjas Ambo, Director Tourism. Ladakh Autonomous and Development Council, Kargil. I would like to extend thanks and gratitude to the Honorable Lieutenant Governor Ladakh, Shri R.K. Mathur ji, for gracing this occasion amidst his busy schedule. Sir, your gracious presence has been an inspiration persons for covering this program, to the security personnel and all other concerned departments. Lastly, I would like to convey deepest thanks and gratitude to all the distinguished guests, BTC chairman and public representatives, participants and the people of Sherborne Block for their enthusiastic and active participation in this festival. Thank you all. Thank you. Thank you very much, ma'am, for presenting your views. Now, I would like to request Honorable Executive Councillor for Health, Shri Mamdani Chandan Sahib, to kindly present traditional khatak. The Chief Guest of the occasion. Chitrus Mamdani Chandan, Executive Councillor, Charlotte Sabzate, Telephone is Lieutenant Governor R.K. Mathur Sundramla, Buddha Producer, Tanatokla, Chief Executive Councillor of Harris Khan Skundum, Tanatokla Basrul Haq Chaudhary, CEO of Kargil, Konsapratane, this Cast Apo Berje, Ika Sitesh Gaskar Producer, Kola, Kola, Tus Yujing, and our Yura Sante, Kaskachas for Cast Apo Berje, Tuja, those you want to get out more, you are Sunday, because you just got to judge some of the Chabazaju, then you think that the Stapo Doja, and Dashes will look up as an objective Jupika, they are Stapo Doja, you are pulling you, Dashes will look at the Mama, I think is a grapple.
का संबंध Midas kolon mohunallai Dela tashi shishola tola tala shisho tashis guse Midas kolon mohunallai तो है ला गुना ना मोलो मोना क्यूरा जुलूस गवेता ना शी रंशो तो है Festival bo juk to chacha janamju tene ye sama healing mana masala rang so se nala juk se soja dontang don chese na demo chese donaza healing masala ju tene mashi siring luz na yang nam mo atang inna tu speaker inna jage ka yang jalen tene supanya ja samala siring nan de shik zare ngeje resmonen